So I think let's start our live interaction. Let's begin by introducing myself. मेरा नाम डॉक्टर शिवराज राजेश गंगावल है. I belong to Nanded district in Maharashtra, and this year I have secured All India rank 788 in UPSC Civil Services examination, and based on my rank, I have been allocated Indian Information Service. Uh, this was my sixth attempt in the Civil Services examination. Previously, I have given my 5 attempts from 2018 to 2023, and कुछ attempts में मेरा prelims नहीं हुआ था. जैसे in my very first attempt and second attempt as well, I couldn't clear the prelims examination. But then I मतलब मैंने सोचा कि और क्या मतलब गलतियां हो रही है, what things I need to improve upon. I took some guidance from the seniors, some of the friends who have cleared the examination, and then I went on to study more. I focused more on my preparation, और फिर मैंने prelims दिया. उसके बाद फिर मेरा prelims कभी रुका नहीं. I उसके बाद मेरा prelims complete हुआ. फिर I prepared for the mains examination. I cleared the mains. Then I appeared for the interview. But that time I couldn't clear the examination. I missed by a few marks. Then again आगे की स्टोरी कंटिन्यू रही. मतलब प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू देने के बाद भी मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. आई मिस द फाइनल कट ऑफ बाय barely 5 marks. फिर उसके बाद अगेन आई प्रिपेयर किया, फिर से अटेम्प्ट दिया, एंड इन दिस सिक्स्थ अटेम्प्ट आई कुड सिक्योर ऑल इंडिया रैंक ऑफ 788. Coming to my overall background, like I belong to, as I said previously, I belong to Nanded district in Maharashtra, uh, and I have done my schooling from Nanded itself, from up to class 12th in the Marathi medium. Later on, I did my graduation. I did my MBBS from Government Medical College Kolhapur, which is also in Maharashtra. And after completion of MBBS, I started preparing for the civil services examination. Actually, my dream or my aspiration to join civil services was very much back, like when I was in class 10th. That time itself I have decided that I'll try my luck in the civil service examination. I'll try to be a good administrator, because I was inspired by one of the district collector in my district. That time only I decided that I will try and be someone like him, in order to contribute more for the society, for the people, for the downtrodden section uh, in our country. So, but having known the uncertainty associated with this examination, as well as some of the guidance from the some seniors as well as teachers, I decided to have a good plan B, and that's why decided to do medical first. I did my MBBS, and later on I started preparation for the civil services examination. But that is not the only thing, because along with my preparation, I was working as a medical officer in Maharashtra, in specifically in my district, in various capacities. Like, I have worked as a medical officer in rural hospital. I have worked as a medical officer at a primary health center, in ESIC hospital, in at various hospitals. I have worked also, and I have studied for this examination also. So this is my brief background. Then coming to UPSC civil services preparation, as you already know that this exam has 3 steps. मतलब 3 stages होते हैं: prelims examination, mains and interview. और तीनों जो होते हैं, all three मतलब जो stages है, it requires different kind of preparation, different approach, and you have to study differently for this, for all the three stages of this exam. So coming to the first stage, that is preliminary examination. Prelims जो होता है, as you most of you might know, that it is an objective exam. We have two papers like GS1 and GS1, and other paper is the CSAT paper, that is Civil Services Aptitude Test. In general studies paper, we have uh, varied subjects like history, geography, polity, environment, science and tech, and current affairs related questions. And in aptitude test, we have reading comprehension part, and logical reasoning, and some of the maths portion.
the out of 200 marks we have some cutoff. We have to just clear that cutoff for the general studies, and for the CSAT it is up approx 33%, 66.66 marks you have to secure in order to clear the prelims examination. Then comes the मेंस एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन सारे पेपर्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, एक एसए का पेपर, देन ऑप्शनल, एंड यू हैव 2 पेपर्स व्हिच बिलोंग टू लैंग्वेज के 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश एंड एनी इंडियन लैंग्वेज. जस्ट लाइक द सीसैट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यू हैव जो अपने लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, यू जस्ट नीड टू मतलब उनको क्लियर करना होता है, क्वालिफाई करना होता है वो पेपर्स को. और जब आप मेंस एग्जाम क्लियर करते हो उसके बाद आता है इंटरव्यू का स्टेज, जिसमें मतलब यूपीएससी भवन में देयर इज एन स्टीम्ड पैनल ऑफ 5 पीपल जो आपका मतलब एक पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं. आपको एक 25 टू 30 मिनट्स में आपको असेस करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको मार्क्स देते हैं. फिर बेस्ड ऑन योर मेंस स्कोर एंड इंटरव्यू स्कोर जो है वो फाइनल लिस्ट मतलब उसको दोनों का स्कोर कैलकुलेट होके फाइनल लिस्ट, फाइनल कट ऑफ बन जाता है. तो ये ओवरऑल एग्जाम की मतलब स्टेजेस है, प्रोसीजर है, किस चीज से एग्जाम चलता है वगैरह वगैरह. सो मतलब व्हाट इज यूपीएससी एग्जाम और किसने यूपीएससी एग्जाम देना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग. मतलब दोज अगर आपने मतलब कहीं से कुछ पढ़ा है या किसी से इंस्पिरेशन ली है, या इफ यू रियली वांट टू मेक सम चेंज और सम गुड कंट्रीब्यूशन फॉर सम मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, तो जरूर मतलब यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है इट इज अ गुड फॉर्म या गुड मीन टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. मतलब जो भी हमें सोसाइटी से मिला है एक वे बैक, मतलब कुछ तो पे बैक करने के लिए एक अच्छा जरिया है. और डेफिनेटली अगर आपकी खुद से इच्छा है तो यू शुड ट्राई and give this examination. So the basic thing is अगर कोई यहाँ पे जो भी students है, if they are in their under graduation, so under graduation is a very good period कि जहाँ पे आप खुद को assess कर सकते हो, एग्जाम के बारे में समझ सकते हो कि what this exam is, फिर कौन सी चीजें लगती है, क्या क्या लगता है, बिकॉज वेरिड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है, यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, मतलब सारे इंटरनेट पे है. तो उससे मतलब इंफॉर्मेशन लेना, चीजों को देखना, एग्जाम क्या है क्या नहीं ये समझना, टॉपर्स का इंटरेक्शन सुनना, टॉपर्स टॉक सुनना, उससे भी बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया होता है. उससे अगर आपने असेस कर लिया कि यार आई शुड ट्राई, आई शुड गिव दिस एग्जामिनेशन, देन वेल एंड गुड. सेकंड थिंग विच यू कैन डू इन योर अंडर ग्रेजुएशन इज लुक एट द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. लाइक अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में आप मतलब अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल इन द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन. सो दैट इज सेकंड थिंग कि आप मतलब आपका ऑप्शनल भी डिसाइड कर सकते हो. आपका ऑप्शनल अगर जो आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम का ही है वही रहा तो दैट इज वेल एंड गुड. इफ ऐसा है कि दैट सब्जेक्ट यू आर नॉट वेरी मच प्रॉम्प्ट और उतना अच्छे से अगर प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट का नहीं है, देन यू कैन टेक एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. आप वो सब्जेक्ट जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, वेरिड सब्जेक्ट, सिलेबस देखना किसी भी सब्जेक्ट का, बेसिक बुक लेके आना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. अगर आपको उस चीज में अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, देन यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट ऑल्सो एज योर ऑप्शनल इन दिस एग्जामिनेशन. सो आपका यूजी का टाइम स्पेसिफिकली अगर फाइनल ईयर हो तो उसके अराउंड में आप आपका ऑप्शनल भी डिसाइड कर सकते हो और उसके लिए बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अनदर थिंग आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स है या कॉलेज गोइंग कैंडिडेट्स है वो क्या डेवलप कर सकते हैं. तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स है लाइक मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ. आप मतलब बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे या अपने अपने स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेज से मतलब जिन्होंने अपना एजुकेशन लिया होगा, तो उनके मन में थोड़ा सा इंग्लिश के लिए थोड़ा सा फोबिया होता है. तो you can utilize this time to develop your communication skills, to develop more command in English. डेफिनेटली दिस एग्जाम ये एग्जाम आप किसी भी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में दे सकते हैं, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की होना ये अपने खुद के लिए ही मतलब ज्यादा अच्छी चीज है. तो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश लैंग्वेज. एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं कि आप आपकी खुद की अच्छे से पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग वगैरह कर सकते हैं. तो ये टाइम आप आपका यूज कर सकते हो. उसके बाद अब आपने मतलब आपका यूजी टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है. यूटिलाइज करने के बाद आप मतलब श्योर हो कि आपको यूपीएससी एग्जाम ही देना है, और देने के बाद मतलब आप
कूद पड़े हो कि अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद क्या करना चाहिए? अभी प्रिपरेशन में सबसे पहले आती है बेसिक चीजें मतलब क्या है कि बुक्स कौन से पढ़े, करंट अफेयर्स कैसे करें। तो इनिशियल आप जब स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, जो भी सारे सारे टॉपर्स आपको बताएंगे, कोई भी बताएगा कि यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो अपना ओवरऑल नॉलेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक बनके, एक फाउंडेशन बनके काम करेगा, जिसके ऊपर हमको और ज्यादा अपना नॉलेज गैदर करना है, एक्वायर करना है और उसको अच्छे से डेवलप करना है। तो एनसीईआरटी यू मस्ट रीड एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसके बाद में पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स है, जिनको 11th के बाद में अंटिल देयर ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट नहीं होता, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स या पॉलिटी हो, वो उन सब्जेक्ट्स का मतलब हम सब कुछ भूल जाते हैं और ज्यादा कुछ आइडियाज भी नहीं रहते। तो बेटर है कि वी शुड गो बैक टू एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज अच्छे से रीड करना चाहिए। नोट्स वगैरह पहले रीडिंग में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रीड द एनसीईआरटीज। जैसे कि कई कुछ कहानी की किताब आप लोग पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, उस हिसाब से इनिशियली एनसीईआरटीज रीड करते रहो। रीड करने के बाद थोड़ा थोड़ा जैसे इंटरेस्ट आएगा, फिर जैसे जैसे आप मतलब आपके प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे, उसके बाद में यू विल रियलाइज विच थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, विच थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, एंड देन अकॉर्डिंगली ट्राई टू मेक नोट्स। सेकंड थिंग आती है न्यूज़पेपर, मतलब कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। सबसे बेसिक चीज पूछते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या, क्योंकि बहुत सारे मंथली मैगजीन्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो वेदर वी शुड रीड न्यूज़पेपर और नॉट। तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी, जैसे मैंने एनसीईआरटीज के बारे में बोला, न्यूज़पेपर रीडिंग इज आल्सो मस्ट थिंग। एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, बी इट द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर गुड एंड स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स, यू कैन रीड एनी ऑफ देम। उसमें भी क्या क्या रीड करना है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, अकॉर्डिंग जो भी यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी जब अपना नोटिफिकेशन जारी करता है अप्रोक्स जनवरी के एंड में या फरवरी में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, उसमें यूपीएससी का एकदम डिटेल में सिलेबस दिया होता है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही अपने को न्यूज़पेपर की चीजें पढ़नी है, एक्स्ट्रा की चीजें नहीं पढ़नी है। एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, क्यों? एडिटोरियल्स will help you to understand the topic thoroughly and make your own opinion। एक अच्छे से खुद का किसी भी टॉपिक के ऊपर ओपिनियन बनाने के लिए एडिटोरियल्स हेल्पफुल रहते हैं। और उसके अलावा जो भी आईआर लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस वाली चीजें हैं, कुछ पॉलिटी रिलेटेड चीजें, वो सारी चीजें, या कुछ स्पेसिफिकली हिस्ट्री रिलेटेड कुछ तो हुआ, जैसे कि हम सबको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, बट अगर न्यूज़पेपर में कोई अगर एक आर्टिकल आया है जिसमें आईवीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेंशन है, तो डेफिनेटली वो चीज जो है हमारे पर्सपेक्टिव से या हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो वैसी चीजें हमको पढ़ना है। सिमिलर टू एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स की भी शुरू से मतलब नोट्स बनाना इतना नेसेसरी नहीं है। काफी सारे मतलब बाकी अपने को मटेरियल्स अवेलेबल है, फिर जैसे जैसे हम लोग वो पढ़ेंगे, जब हम मंथली कंपाइलेशंस वगैरह किसी भी क्लासेस के पढ़ेंगे, वो पढ़ते समय वी विल रिकॉल, मतलब न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज हमने पढ़ी है तो वो डेफिनेटली हमको उस टाइम पे रिकॉल हो जाएंगी और हम वहां पे वैल्यू एडिशन उसमें कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें करने के बाद दूसरी मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऐसे बोला जाता है कि यूपीएससी में कुछ भी पूछ लेते हैं, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी, बट दिस इज अ कंप्लीट मिथ, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, यूपीएससी ने अपना डिटेल सिलेबस दे के रखा है, एंड दैट इज अ बाउंड्री जिसके अंदर अपने को खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है कि उतना ही पढ़ना है जितना हमें यूपीएससी ने बताया, क्योंकि ऑल द सब्जेक्ट्स, बीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब दे आर लाइक ओशंस, मतलब खत्म ही नहीं होंगे अगर हम पढ़ने चालू करेंगे तो। बट जितना हमें यूपीएससी ने सिलेबस में चीजें मेंशन करी है, हमको उतना ही पढ़ना है, उसकी बेसिक बुक्स पढ़ने हैं, और कुछ रेफरेंस बुक जो सारे बच्चे पढ़ते हैं यूजुअली, वो सब कुछ हमें पढ़ना है, ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। पर ठीक है, यूपीएससी ने लिमिट तो दे दी है, बट उसमें डीप कितना जाए, उसके लिए अपने को दूसरी चीज हेल्प करती है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको मतलब बता देंगे कि कितना डेप्थ में हमको यूपीएससी जितना डीप क्वेश्चन पूछती है, जो कुछ यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट करती है, हमको उतना ही पता होना चाहिए, हमको उतना ही जानना है। तो अपने आंसर्स की या अपने नॉलेज की डेप्थ कितनी रखनी है, उसके लिए अपने को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो पीवाईक्यूज विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब आते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया, आप बेसिक्स पढ़ रहे हो, आपने बेसिक्स खत्म कर ली, यू हैव रेड एनसीईआरटीज, यू हैव
यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आगे कैसे बढ़ना है? ठीक है, आपने एनसीईआरटीज़ कवर कर ली, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके बाद में आपको कुछ रेफरेंस बुक्स जैसे कि पॉलिटी के लिए एवरीबॉडी विल रीड लक्ष्मीकांत। उसके बाद हिस्ट्री के लिए हमको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है। उसके बाद में ज्योग्राफी के लिए बाय एंड लार्ज एनसीईआरटीज़ 9th 10th 11th 12th दे आर मोर और लेस सफिशिएंट। इफ वी वांट टू मतलब कुछ और ऐड करना है तो जीसी लियोंग इज आल्सो गुड बुक फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद इकोनॉमी इकोनॉमी के लिए भी इकोनॉमी के जो एनसीईआरटीज है वो काफी अच्छे हैं। और उसके बाद में किसी क्लास के नोट्स वगैरह आपने अगर फॉलो कर लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज इनफ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो करंट अफेयर्स में से भी जो एडिशनल चीजें वो करंट अफेयर्स से अपने को मिल जाएंगी। और बेसिक चीजें किसी कोई भी एक बुक उठा के आप पढ़ सकते हैं, बेसिक वाला सारी चीजें उसमें से कवर हो जाती है। तो ये सब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद फिर ये क्या अटेम्प्ट कब देना है, कैसे करना है, वो कैसे डिसाइड करना है। तो अगर आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, इफ यू आर प्रिपेयर, आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो और आपको 2026 का अटेम्प्ट देना है, तो मतलब किसने अटेम्प्ट देना चाहिए, हु शुड गिव द अटेम्प्ट इन 2026। और अगर कोई ऐसा है कि मुझे एक ही अटेम्प्ट देना है और मुझे यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी है, देन आई विल टेल यू, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट कंप्लीट the preparation for your मेंस examination, डोंट गिव प्रीलिम्स। क्योंकि मैं प्रीलिम्स देने के बाद मेंस के बीच में यू विल गेट हार्डली 80-90 डेज का पीरियड, और उतने पीरियड में मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन होना इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इवन बिफोर यू आर अपियरिंग फॉर द प्रीलिम्स। तो अब मतलब प्रीलिम्स हमारा यूजुअली होता है एंड ऑफ मे, लास्ट वीक ऑफ मे में हमारा प्रीलिम्स होता है। तो उसके अप्रोक्सीमेटली 4 5 6 मंथ्स बिफोर हमारा मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल हमारा ठीक ठाक, मतलब कम से कम उतने सारी चीजों के अपने नोट्स रेडी होने चाहिए, एक बेसिक अंडर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमने करी हुई होनी चाहिए। अगर उतना हमने किया है देन वी आर कि ठीक है, मतलब वो 3 महीने में हम और अच्छे से हमारे आंसर्स को पॉलिश करेंगे और अच्छे से खुद के नॉलेज की डेप्थ बढ़ाएंगे और उसके बाद में मेंस देंगे। तो दैट इज फर्स्ट थिंग कि जब भी प्रिपेयर कर रहे हो सिलेबस देखो, प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, दोनों सिलेबस देखो, ओवरलैपिंग सिलेबस कितना है, कैसा है। और फिर ओवरलैपिंग वाले टॉपिक्स जैसे हिस्ट्री में है, पॉलिटी में है, ज्योग्राफी में है, इकोनॉमी है, उसमें के टॉपिक्स आप साथ में प्रिपेयर करो, उसके नोट्स बनाओ। और जितना खुद के नोट्स बनाओगे दे आर हेल्पफुल। स्टैटिक पार्ट में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स पार्ट, स्टैटिक में जितने खुद के नोट्स बनाओगे दे आर हेल्पफुल टू यू। उसके बाद आप ऐसे खुद का मेंस का प्रिपरेशन, मतलब बाय दिसंबर एंड आपका मेंस का प्रिपरेशन खत्म करके आप जनवरी से फुल्ली मतलब लगभग प्रीलिम्स मोड में चले जाओगे। प्रीलिम्स मोड में जाना मतलब क्या है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। मतलब अगर आप पढ़ते जा रहे हो बट टेस्ट नहीं दे रहे हो, देन आपको मतलब समझेगा ही नहीं। देखने में तो आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा कि मैं बहुत सारा, मैंने 2 बार रिवाइज किया है, मैं पढ़ रहा हूँ, बट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर, यू आपको समझेगा नहीं कि मतलब आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है। तो टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रीलिम्स प्रिपरेशन। एंड ऐसा नॉट नेसेसरी मतलब टेस्ट सीरीज किसी क्लास में जाके ही ज्वाइन करना है। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मतलब मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी। तो आप वो पेपर्स उठा के खुद से घर पे बैठ के भी अच्छे से पेपर्स, वो शेड्यूल टाइम में, मतलब 2 घंटे का अपना प्रीलिम्स का पेपर है तो उतने टाइम के लिए अच्छे से बैठ के वो पेपर देना है और इवेल्युएट करना है। पेपर दे के सिर्फ कितने नंबर आ रहे हैं क्या नहीं ये देख के छोड़ना नहीं है। ऑल द 100 क्वेश्चंस यू हैव टू गो थ्रू देम, मतलब एकदम थोरोली, अलोंग विथ मतलब सारे ऑप्शंस भी, कि ये ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन क्यों दिया होगा, किस तरह से दिया होगा, उस अकॉर्डिंगली आपको वो सारा मतलब पेपर जो है वो रिवाइज करना होता है। एंड मैं क्या करता था फॉर माई प्रीलिम्स, मतलब जो भी मैंने अगर टेस्ट लिखा है उस दिन फिर मैं क्या, वो जो पेपर होगा उस पेपर में अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मतलब कुछ आई डिडंट हैव एनी आइडिया, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना लेता था। क्योंकि जो भी पेपर सॉल्व करने के बाद जो की आती है, की के साथ एक्सप्लेनेशन होता है। तो एक्सप्लेनेशन में ही बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे हम उससे भी अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो मेरा हर मतलब एक 100 क्वेश्चंस का अगर एक पेपर हो गया, तो मैं एक
एक वन मतलब A4 साइज का एक पेपर पे जो चीजें मुझे पता नहीं है वो वाले क्वेश्चन पेपर से मैं वो सारे नोट कर लेता था। ऐसा मतलब मैक्सिमम 1 पेज के नोट्स बन जाते हैं, जैसे-जैसे हम लोग उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिन-जिन क्वेश्चन का कुछ भी आइडिया नहीं है और वो क्वेश्चंस रेगुलरली रिवाइज़ करने के। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, हमारे करेक्ट हुए, वो तो हमें पता है। प्रॉब्लम आता है जो क्वेश्चंस हमें पता नहीं थे या मतलब जो एकदम ही कुछ क्वेश्चंस रैंडम होते हैं या कुछ हमारे कुछ बेसिक गलती की वजह से चले जाते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस फिर बाद में गलत ना हो उसके लिए मैं उसके नोट्स बना के रखता था। ये सारे क्वेश्चंस में मतलब सारे जो हमारे टॉपिक्स है उसमें अप्लाइड है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके ऑप्शंस और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चंस आगे भी पूछते रहता है जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसमें मतलब बहुत सारे बार इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यूपीएससी कॉन्स्टेंटली वो वाले टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर हिस्ट्री में ही मतलब विजय देवराय सॉरी कृष्ण देवराय विजयनगर का एम्पायर जो है उसके ऊपर भी लगभग मतलब हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें एक ट्रेंड पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं वी अंडरस्टैंड द ट्रेंड कि यूपीएससी कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है और उस अकॉर्डिंगली हम ज्यादा से ज्यादा वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं ये रहा जीएस के बारे में सेकंड कम्स सीसैट डे एंड डे मतलब जैसे जैसे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करते जा रहा है सीसैट का लेवल जो है ज्यादा से ज्यादा टफ हो रहा है तो सीसैट को भी किसी ने भी बिल्कुल कि यार सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है लिख लेंगे कर लेंगे ऐसा नहीं कर सकते अभी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स दे आर मतलब सीसैट में दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई और अगर सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मतलब आपका पूरा एक साल की मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी तो सीसैट को भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है और सीसैट का भी प्रिपरेशन सीसैट के प्रिपरेशन के लिए सिर्फ आप जब से सीसैट आया है तब से मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने के और वो क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने के जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए डाउट्स आए यूट्यूब से हो या गूगल से हो या आपने अगर कोई क्लास ज्वाइन किया है या कोई आपके साथ प्रिपेयर करने वाले जो साथ वाले कोई बच्चे हैं कोई मेंटर है आपके उनके साथ डिस्कस करना है कि और अच्छे से और फास्ट तरीके से ये प्रॉब्लम मैथ्स के रिलेटेड हो तो कैसे सॉल्व करने हैं क्या करने हैं वही ट्रेंड मतलब यूपीएससी के पेपर देखने के बाद समझेगा कि यार कौन से क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं जैसे नंबर सिस्टम है सीसैट में अगर वहां से क्वेश्चंस हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ रहे तो वो वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है ब्लड रिलेशंस का टॉपिक हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो परसेंटेज हो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वो देखने के वो उसका प्रैक्टिस करने का क्योंकि सिर्फ कुछ वीडियोस देखने के या क्लास करने से सीसैट का पेपर क्लियर नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वी सॉल्व दोज मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से हम लोग मतलब आयन एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वही सीसैट का भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो पीवाईक्यूज करने के बाद उसके भी जितने टेस्ट मतलब सॉल्व कर सकते हो उतने टेस्ट अच्छे से टाइम ड्यूरेशन लगा के सॉल्व कर लेना एंड उसका भी मतलब अच्छे से प्रिपेयर तुम कर सकते हो प्रीलिम्स के बाद आते हैं मेंस के प्रिपरेशन पे मेंस के प्रिपरेशन में आते हैं मतलब अपनी जनरल स्टडीज के पेपर जनरल स्टडीज के पेपर जीएस 1 2 3 4 जीएस 1 में आता है अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम बहुत सारा पार्ट जो है वो प्रीलिम्स के साथ साथ ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन आप प्रीलिम्स के साथ में ही उसका जो स्टैटिक पार्ट अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो उसके साथ में आप कंप्लीट कर दोगे उसके साथ ही आपके जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे वो नोट्स आपको आंसर राइटिंग में वगैरह काम आ जाएंगे आंसर राइटिंग भी मतलब आप जब करते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि कुछ टॉपर्स की कॉपीज वगैरह देखनी चाहिए टॉपर्स कॉपीज वगैरह आप देखेंगे उससे आपको आइडिया आएगा कि आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन कैसे करनी है क्योंकि नॉर्मल कोई भी बोलता है कि इंट्रो होना चाहिए बॉडी होनी चाहिए कंक्लूजन होना चाहिए ये तो आंसर राइटिंग का एक बेसिक फॉर्मेट है बट उसको ही ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाए इंट्रो ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं इंट्रो में ही क्योंकि हम एक अपना एक अलग इमेज बना सकते हैं इंट्रो में ही अपने आंसर का कि यार बहुत अच्छा आंसर है तो डिफरेंट टाइप के इंट्रोस कैसे होते हैं अपनी बॉडी को कैसे मतलब जो क्वेश्चन हमें समझो पता नहीं है वो क्वेश्चंस में आंसर कैसे करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे बढ़ाने हैं ये आपको टॉपर कॉपी से पता चलेगा या किसी सीनियर से बात करने के बाद आपके टीचर से बात करने के बाद वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी
तो डेफिनेटली मार्केट में टॉपर्स कॉपीज भी अवेलेबल होती है, वो देख के अच्छे से उसको भी एनालिसिस करके खुद की कॉपी, टॉपर की कॉपी साथ में रख के कि मैं ये वाले क्वेश्चन में मतलब क्या और बेटर कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने कैसे लिखा है। तो वो सारी चीजें आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ेगी। जीएस1 हिस्ट्री के पेपर में आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं, जैसे कोई टेम्पल वगैरह पे क्वेश्चन आया है तो एक स्कीमेटिक डायग्राम उस चीज का आप बना सकते हो। ज्योग्राफी के पेपर में मैप्स बनाना होगा। सोसाइटी वाले क्वेश्चन में मतलब फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना, कुछ टेबल बनाना। तो जैसे जैसे जितनी अच्छी से आप वैल्यू एडिशन आपके आंसर्स में कर सकते हो वो करने चाहिए। सेकंड पेपर अपना आता है पॉलिटी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके साथ में होता है इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन में जैसे प्रीलिम्स के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो बट आपको सिर्फ फैक्चुअल चीजें मेमोराइज नहीं करनी होती है पॉलिटी में, आपको वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जैसे एवरी वर्ड है हमारे प्रियम्बल, प्रियम्बल में डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है, तो डिफरेंट कीवर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, डिफरेंट, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस यूपीएससी अभी प्रीलिम्स में पूछ रहा है और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे बहुत सारे मेंस के भी क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो वो मेंस के क्वेश्चंस में अगर पॉलिटी के क्वेश्चन में हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, तो हमारी वैल्यू एडिशन कैसे, जब हम आर्टिकल्स मेंशन करेंगे, उसके बाद में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके बारे में है, हमने अगर वो मेंशन किया, या उसके अकॉर्डिंग कोई कमिटी बनी है, उस कमिटी ने कोई अच्छे से रिकमेंडेशन किया है, तो अगर वो चीज हमने मेंशन करी तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे से मतलब इम्प्रूव दिखेगा और उसमें हमें नंबर भी ज्यादा मिल सकते हैं। आईआर के क्वेश्चंस में भी आप अच्छे से मैप बना सकते हो। आईआर का पोर्शन जो है हुआ करंट अफेयर्स वाले पार्ट से ही, मतलब जो भी आप करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स वगैरह पढ़ोगे उससे आप अच्छे से कवर कर सकते हो, उसके लिए कोई स्टैटिक बुक वगैरह पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जीएस3 का पेपर बाय एंड लार्ज करंट अफेयर बेस्ड ही आता है। ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसमें, या इंडियन सिक्योरिटी वाला पार्ट है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इतना मतलब काफी बड़ा सिलेबस है जीएस3 का। और जीएस3 में बहुत सारे बच्चों का मतलब नंबर भी पिछले कुछ सालों से थोड़े कम आ रहे हैं, बट जीएस3 के पेपर में स्टैटिक के साथ साथ जितना आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग रहेगा, जितने अच्छे केस स्टडीज वगैरह आप उसमें डाल सकोगे, कोई एग्जाम्पल्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे अगर हम लोग लिख पाए तो हमारा मतलब आंसर जो है बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा लगेगा। और उसके बाद जीएस4 जो हमारा इथिक्स का पेपर है वो बाकी तीन पेपर से कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि बाकी तीन पेपर जो है वो हम लोग मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होते हैं, काफी सारे बुक्स भी पढ़ते हैं, नॉलेज मतलब इधर उधर से मिल जाता है और बाय एंड लार्ज अच्छे से लिख ही लेते हैं। जो पेपर हमारे इसमें डिफरेंस क्रिएट करता है एक मतलब दो लोगों के आंसर्स में या दो लोगों के मार्क्स में, वो होता है इथिक्स का पेपर। क्योंकि इथिक्स के पेपर में आपका आंसर राइटिंग स्किल वगैरह बहुत अच्छे से आपको रिफ्लेक्ट आप कर सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है। जितना अच्छे से मतलब एक इथिक्स के पेपर में जो भी अपनी सिलेबस है पूरा, सारे सिलेबस के कीवर्ड्स का एक अच्छा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोगों को मतलब पता होना चाहिए। एक हमारे खुद के लैंग्वेज में हम लोग मतलब कोई वर्ड है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, या परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है। तो वो कीवर्ड्स के बारे में हम क्या समझते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली अगर हमें सोसाइटी में उस चीज से रिलेटेड कोई अच्छा सा एग्जांपल अगर दिख रहा है, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी मतलब इंडिया से हो, इंडिया के बाहर से हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई सोशल वर्कर हो, साइंटिस्ट हो, तो वो डिफरेंट एग्जांपल्स हम उस टॉपिक से कैसे रिलेट कर पाते हैं, हम कैसे लिख पाते, उससे मतलब ये बहुत ज्यादा हमारा इथिक्स का पेपर मतलब इवेल्युएट होता है उस चीज से, उस चीज से ही हमारे नंबर्स भी आते हैं। इथिक्स के पेपर में एक पार्ट होता है केस स्टडीज का। केस स्टडीज में भी एक तो हमारा सिलेबस के ऊपर अच्छे से जब कमांड होती है तो उसको हम अच्छे से यूज कर पाते हैं अपने केस स्टडीज के आंसर राइटिंग में भी। उसके लिए थोड़े बहुत जो थिंकर्स फिलोसोफर्स होते हैं उनके कुछ अच्छे से कोट्स वो भी हम लोग इथिक्स के पेपर में यूज कर सकते हैं। चार जीएस पेपर्स के अलावा हमारा एसए का भी एक पेपर होता है। एसए के पेपर में भी हमारा
राइटिंग स्किल जितना अगर अच्छा हो, हम मतलब कितने कंटिन्यूटी मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना एंगेजिंग कंटेंट हम दे, मतलब जो भी हमारा इवैल्यूएटर पेपर चेक कर रहा है, उसको हमारा जो कंटेंट है वो कितना एंगेजिंग लग रहा है, कितने अच्छे से हमने लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह कुछ नहीं है उसमें, एक लूसिड मतलब हैंडराइटिंग भी अच्छी है। वो वाली सारी चीज़ें अगर हम लोगों ने अच्छे से करी, और जो भी कंटेंट है जितना ट्राई टू बी एज़ यूनिक एज़ पॉसिबल, मतलब गांधी जी हो, मतलब एग्जाम्पल्स हम लोग यूजुअली लिखते हैं ऐसे के पेपर में, तो गांधी जी या मंडेला, बाबा साहेब अम्बेडकर, मतलब ये एग्जाम्पल्स लोग लिखते आ रहे हैं, काफी टाइम से लिख रहे हैं और कंटिन्यूअसली लिखते ही जा रहे हैं। अगर ये चीजों के अलावा अगर हमने कुछ डिफरेंट हमारे आंसर राइटिंग या हमारे एस्से में अगर लिखने की कोशिश की, कुछ अलग व्यू पॉइंटर देने का कोशिश किया है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा। जीएस के 4 पेपर्स में से जो एथिक्स का पेपर है एंड एसटे का पेपर, ये दोनों काफी मतलब मार्क्स के जो वेरिएशन है इसमें काफी ज्यादा है, और आप लोग अच्छे से अगर ये चीजों के बारे में अगर प्रिपेयर कर सके, तो आप काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आपके मार्क्स में और बाकी कैंडिडेट्स के मार्क्स में। उसके बाद आपका आता है ऑप्शनल। तो मेरा ऑप्शनल जो था वो मेडिकल साइंस था, जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही था। तो मेरे लिए प्रिपरेशन और मतलब ग्रेजुएशन के टाइम से ही मैं मेरे सब्जेक्ट में काफी मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता था, तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था उसका प्रिपरेशन फिर से, बट फिर भी मेरा सब्जेक्ट जो था वो थोड़ा वास्ट था। मैंने खुद से हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह थे उससे नोट्स बना लिए थे, वो वाले नोट्स फॉलो किए। उसके बाद में जैसे जैसे मेंस एग्जाम प्रीलिम्स मेंस के बीच में हो या उससे पहले हो, मैंने भी उसके टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए थे। टेस्ट सीरीज में जितने ज्यादा टेस्ट लिख सकता था उतने सारे टेस्ट भी मैंने लिखे। और वही चीज मतलब जो चीज मैंने मेरे ऑप्शनल में करी है वही आपको भी कोई भी अगर ऑप्शनल आपका रहा तो वो करना है। एक तो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स या जो भी रेफरेंस बुक्स है वो आपको रीड करने पड़ेंगे अच्छे से, उसके साथ आपके खुद के नोट्स बनाने हैं वो वाले ऑप्शनल के, और नोट्स बनाने के बाद आपको अच्छे से जितनी हो सके उतनी ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है, एंड ट्राई टू बी मतलब खुद से ही compete करो कि आज जो पेपर मैंने लिखी, आज जो आंसर मैंने लिखा है, कल मैं उससे और ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ खुद को, किसी भी तरीके से, लैंग्वेज में हो या कुछ अच्छे से कीवर्ड्स में कैसे आप अपने आंसर में डाल पा रहा हूँ, या मैं और अच्छे से मतलब क्रिएटिव वे में कुछ अगर कंक्लूड कर पा रहा हूँ मेरे आंसर को। तो खुद ही हमें अपने को इवेल्युएट करना होता है कि मैं कल से मैं खुद कैसे ज्यादा खुद को बेटर कर पा रहा हूँ। तो ऐसे इथिक्स और ऑप्शनल के ऐसे पेपर्स होते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बोला कि दो पेपर होते हैं, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकंड पेपर और एनी इंडियन लैंग्वेज। तो ये दोनों पेपर जो होते हैं वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होते हैं। आपने अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट भी अगर कर लिया है, तो अटेम्प्ट करने के बाद भी आप यूजुअली वो क्वालिफाई कर जाते हो। बट डेफिनेटली यूपीएससी का एग्जाम है, किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है कि यार मुझे पता नहीं कि मैं ये पेपर क्लियर कर भी पाऊंगा, मेरा लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है या कमांड नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा उसके भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखना, और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं क्या नहीं, एक बार देख के उससे गो थ्रू करने के बाद यू कैन क्लियर दैट पेपर। देन नेक्स्ट स्टेज कम्स द पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब सारे यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस से कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको अलग से प्रिपरेशन की मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ना है या कुछ स्टैटिक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गो थ्रू करते रहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है आपको छोड़ना ही नहीं है। आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो, आप आपकी खुद की लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। आपको क्या करना होता है, आप जब मेंस एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद हम लोग अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ जो होता है डैफ 1 सबमिट करते हैं, और मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद हम लोग अपना डैफ 2 सबमिट करते हैं। तो डैफ 1 और डैफ 2 में जो भी सारी चीजें हमने मेंशन कर रखी है, उन्हीं चीजों के बारे में हमको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना होता है, क्योंकि वो जो हमने खुद से ही डैफ में प्रोवाइड किया है, उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डैफ 2 में हम लोग अपने हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अपने ऑप्शनल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो नेटिव प्लेस, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, नेटिव स्टेट, उसके ऊपर उसके कुछ इश्यूज है, कुछ चीजें करंट में चल रही है उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। आपने अगर कुछ अचीव किया है लाइफ में, मतलब कुछ आपका
अचीवमेंट्स वगैरह जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पोजीशंस होल्ड किए हैं, मतलब आप जनरल सेक्रेटरी रहे हो कॉलेज में या कुछ और चीजें, तो उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर आपने कहीं इससे पहले वर्क किया है, वर्क एक्सपीरियंस आपका है, उसके बारे में, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, ये सारी चीजें, इनके बारे में ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसके साथ साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो चीजें करंट में चल रही है उसके बारे में पूछते हैं। तो आपको आपकी ही जो चीजें जो आपने प्रोवाइड किया है, उन्हीं पे खुद पे ही काम करना है आपको। उसके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब आपकी इंग्लिश एकदम ही मतलब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, बट जो भी मैसेज, जो भी आंसर आप दे रहे हो, जो भी बात आप बता रहे हो, यू शुड ट्राई टू कम्युनिकेट इट विथ कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस, प्रिसाइजनेस होना चाहिए आपके आंसर्स में, और वही चीज मैटर करती है। डोंट ट्राई टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। आप जो हो, आप जैसे हो, बी रियल। पर्सनैलिटी टेस्ट का वही है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी असेस कर रहे हैं। तो जितना रियल, जितना जेन्युइन, जैसे आप हो वैसा प्रेजेंट करो, दैट विल बी मच मोर रिवार्डिंग इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट अपनी एग्जाम की स्टेजेस हो गई। बेसिक प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या करना होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी और कुछ चीजें मतलब जो मुझे लगता है कि एड्रेस करनी चाहिए, वो है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कोचिंग करना जरूरी है, क्या है एग्जाम के लिए। सी, जैसे मैंने बोला है कि यूपीएससी ने बहुत अच्छे से डिटेल सिलेबस देखिए रखा है अपनी वेबसाइट पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। आप सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, आप क्वेश्चंस देखिए पिछले वाले, आप कुछ बेसिक बुक्स वगैरह, एनसीईआरटीज वगैरह जैसे वो रीड कीजिए। वो करने के बाद इफ यू थिंक कि हाँ, मैं मतलब ये सारी चीजें मैं खुद से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, मुझे मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा मुझे और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और मैं कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली आप पढ़ते रहो, खुद से करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कि कुछ इकोनॉमिक के कंसेप्ट है या कुछ चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, या आई एम स्टक कि भाई कुछ टॉपिक्स में मैं स्टक हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या होना है, तो ऐसी चीजों में अगर आप कोचिंग ले सके, कुछ स्पेसिफिक लाइक इथिक्स जैसा सब्जेक्ट है, जो बाकी सब्जेक्ट से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो समझ में नहीं आ रही है, ये क्या है, तो आप डेफिनेटली किसी कोचिंग का वगैरह हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब खुद से कैसे कर रहे हो और कितना आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद में अनदर क्वेश्चन इज, कोचिंग लेना है, अब डिसाइड हो गया कि कोचिंग करना है, तो ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। इसमें भी मतलब ये सारी चीजें है ना, ये दे आर पर्सनैलिटी बेस्ड, मतलब आपको खुद पे, खुद को ही वो चीज एनालाइज करनी होती है कि मैं घर पे बैठ के मैं मतलब उतने अच्छे से पढ़ सकता हूँ क्या, मैं अच्छे से टाइम दे सकता हूँ क्या प्रिपरेशन में, डाइवर्जेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि घर पे जब होते हैं तो फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फैमिली के इश्यूज होते हैं, चीजें चलती रहती है, तो उसमें अगर अपना टाइम जा रहा है तो दैट इज नॉट गुड। बट घर पे बैठ के अच्छे से अगर प्रिपरेशन करना किसी को पॉसिबल है, तो डेफिनेटली उससे ज्यादा अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आप अपने घर पे बैठ के ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर ऐसी चीजें आपको पॉसिबल नहीं लग रही है, आप अफोर्डिंग भी है कि कोई दूसरा भी इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली जो भी अच्छे से सेंटर्स है आपके पास में, जैसे दिल्ली हो या महाराष्ट्र में लोग पुणे से प्रिपेयर करते हैं, या मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो वाली जगह पे आप जाके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस वही चीज करनी है, जहां भी बैठेंगे, जहां पे भी प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए बैठेंगे, पूरा टाइम हमको पढ़ाई के लिए ही देना है। ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस कहीं पे भी अगर है, घर पे भी हो या बाहर भी हो, अगर डिस्ट्रैक्शंस है तो डेफिनेटली हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। हमारे जो मतलब एफर्ट्स है, एफर्ट्स एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए, क्योंकि हम खुद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें किसी ने बोला नहीं है कि यूपीएससी की एग्जाम देना है या जब कोई जबरदस्ती की है। हमें खुद को लगता है कि हमें एग्जाम देना है, हमें कुछ तो बनना है, तो खुद खुद ही अपने एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चंस कि भाई कोचिंग लगानी है या नहीं लगानी है, और लगानी है तो ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कि मैं फुल टाइम प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ,
मुझे मतलब फैमिली को सस्टेन करने के लिए या खुद को सस्टेन करने के लिए जॉब भी करना पड़ेगा, जॉब करना पड़े तो उनके लिए भी डेफिनेटली कोई मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अलोंग विथ वर्क एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपेयर करके उन्होंने एग्जाम क्लियर भी किए। इवन आई वाज वर्किंग एज अ फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर एट अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन माय डिस्ट्रिक्ट ये अभी, और वो करते करते ही पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर हुआ है। तो डेफिनेटली आप भी ये चीज कर सकते हो, बट वही आपको करना है कि अगर बाकी के बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको वो वाला कंटेंट उतना पार्ट आपको 6 आवर्स में जितना भी टाइम आपको मिलता है उतने लिमिटेड टाइम में आप कितने अच्छे से मतलब वो वाला पार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। आपकी जो एबिलिटीज है वो बढ़ानी पड़ेगी। जितने आप मतलब लिमिटेड टाइम में और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकोगे, प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे, तो वर्क के साथ साथ भी आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। तो मतलब ये भी कोई आपके मन में डाउट मत रखना कि मुझे सब कुछ छोड़ के सिर्फ प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो अलोंग विथ वर्क ऑल्सो यू कैन मैनेज। अब अभी अभी मतलब मैंने कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे पूछा था कि सर आप की मैरिज हुई है क्या, ऐसा? तो यस, मेरे पिछले वाले अटेम्प्ट के बाद आई गॉट मैरिड आल्सो। मेरी शादी हुई है और शादी के बाद ही मेरा रिजल्ट आया है। तो ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है कि अगर इफ योर आपकी एज बढ़ रही है या कुछ चीजें या फैमिलियर प्रेशर जो भी कुछ है कि आपको शादी करनी है, तो उसके बाद भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। प्रोवाइडेड अच्छे से आपका जो आपका या आपकी पार्टनर ने आपको अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, जो मेरे पार्टनर ने मेरी फैमिली ने मुझे किया और जिसकी वजह से रिजल्ट आया है। तो वही चीज है, आपकी अगर आपके पार्टनर के साथ अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह है, तो उसके साथ भी आप शादी के बाद भी अच्छे से प्रिपेयर करके रिजल्ट अच्छा ला सकते हो। तो मुझे लगता है कि मेरे साइड से मैंने अभी ऑलमोस्ट जो भी कुछ बताना था वो बता दिया है। और अगर कुछ मुझे आपके आंसर क्वेश्चन के आंसर देते समय अगर कुछ रिकॉल हुआ, तो डेफिनेटली मैं फिर से वो वाली चीज आपको बता दूंगा। तो मुझे लगता है मैं अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। किसी ने पूछा है कि कितना भी कोशिश कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं हो पा सी मतलब आपको ही कोई और आपकी जगह आके पढ़ने नहीं वाला है। तो जो भी है, जो भी लाइफ के आपके डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी चीज़ें आपको मतलब पढ़ाई से दूर लेके जा रही है, उन चीज़ों को आपको ही एफर्ट्स डाल के जितना आपको खुद से कोशिश करके उन चीज़ों को आपके लाइफ से निकालना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका गोल आपने सेट किया है, वो गोल सेट करने के बाद अगर आप मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप वो खुद के साथ मतलब जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि चीज़ें आप अवॉइड करो, आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करो और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। हो नहीं रहा है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी सी मूवी देखो, कहीं घूम आओ, दोस्तों से बात करो, बट उतने टाइम के लिए ब्रेक होने के बाद फिर से प्रिपरेशन पे आ जाना। रिगार्डिंग माय प्रीलिम स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बोला कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस स्टैटिक पार्ट पे ही रहता था। बीट एनसीईआरटीज़ पढ़ता था मैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए। पॉलिटी के लिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस लक्ष्मीकांत के ही ऊपर रहता था, लक्ष्मीकांत ही पढ़ता था मैं। और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए यूजुअली लोग शंकर आईएएस का बुक फ़ॉलो करते हैं, मैं भी उसी से पढ़ता था। और तमिलनाडु बोर्ड की एक टेक्स्ट बुक आती है एंशियंट मिडिवल के लिए, वो भी मैं फॉलो करता था। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बुक है। इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटीज ही ज्यादातर मैंने फॉलो करी है और कुछ मृणाल सर के नोट्स वगैरह भी मैंने फॉलो करे थे। तो ये वाली चीजें एक बार मतलब मैंने जो मेरे सोर्सेस कंसाइज कर लिए थे, उसके बाद मैंने सोर्सेस बढ़ाए नहीं। तो वन थिंग कि सोर्सेस जो है वो लिमिटेड रखो और उन्हीं चीजों को, लिमिटेड रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करो। तो मैं प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पार्ट जो मेरा था वो अच्छे से प्रिपेयर करता था, उसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता था और उसके साथ साथ
मैक्सिमम टेस्ट देना। मतलब जितने टेस्ट पॉसिबल है मार्केट में जो भी अवेलेबल है 2-3 क्लासेस के वगैरह, वो मैं टेस्ट लेके आके खुद से सॉल्व करता था जितने हो सके। और जैसा एज आई सेड प्रीवियसली आल्सो कि आई यूज्ड टू मेक नोट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशंस। एक-एक पेजेस के मेरे नोट्स बनते थे और मैं उनको रिवाइज करते रहता था। और लास्ट के जो फ्यू डेज होते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम, मैं जो मेरे खुद के जो टेस्ट लिखे हैं मैंने या जो टेस्ट सॉल्व किए हैं उनको ज्यादा रिवाइज करता था रादर देन द पूरा जो सिलेबस है, जो कुछ बुक्स वगैरह मैंने पढ़े हैं या जो मैंने नोट्स हैंड रिटन जो मैंने सिलेबस के नोट्स बनाए हैं, उससे ज्यादा मैं मेरे टेस्ट पेपर्स रिवाइज करता था। Regarding my motivation, as I said earlier, कि during my 10th exam, there was an incident in my district, like एक स्पेशल ड्राइव हमारे यहाँ पे हमारे जो उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने जो 10th और 12th एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में मास कॉपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मतलब कॉपी बहुत ज्यादा चीटिंग जो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता था। तो उन्होंने एक स्पेशल ड्राइव चलाया था उसके अगेंस्ट में। और जो मतलब एक 10th 12th क्लास वाले बच्चे जो थे उनमें एक बहुत ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन पैदा हो गई कि यार इतना अच्छा कोई आदमी मतलब कैसे काम कर सकता है या कितना एक डेफिनेटली सोसाइटी में मतलब चेंज ला सकता है। तो दैट वाज द प्राइम मोटिवेशन। उसके बाद में जैसे जैसे बड़े होते गए, चीजें देखते गए, कुछ बुक्स पढ़े, तो उससे ज्यादा वो मोटिवेशन सस्टेन रहा और सस्टेन रह के आई कुड प्रिपेयर। सी पीवाईक्यूज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि पीवाईक्यूज हमें क्या समझाते हैं कि एक तो यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, कौन सी चीजों के ऊपर यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हमें कितना डेप्थ तक जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चंस आ रहे हैं, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उसके बाद में यूपीएससी का हिस्ट्री में ही मैं मतलब बता रहा हूँ कि ट्रैवलर्स ट्रैवलर्स के ऊपर यूपीएससी का बहुत मतलब ज्यादा फोकस होता है, ट्रैवलर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। या एंशियंट टाइम्स मिडिवल टाइम्स के जो पोर्ट सिटीज होती है उनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। या मतलब पीवाईक्यू हम लोग जो पिछले 3-4 साल के प्रीलिम्स के अगर हमने क्वेश्चंस देखे तो यूपीएससी एक नए टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, जैसे ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। तो हमें यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, किस तरह से क्वेश्चन सेट कर रहा है वो समझ में आता है और उस अकॉर्डिंगली हम लोग अपना प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उस अकॉर्डिंगली हम लोग वो चीजों पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इकोनॉमी के प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने पहले बोला कि एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटी से आपका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा चीजें क्या है। उसके बाद में कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे मैंने बोला कि मैं मृणाल सर के नोट्स मैंने कुछ फॉलो करे थे। उसके बाद में पीपल आर फॉलोइंग विवेक सिंह जो है उनका भी बुक काफी अच्छा है, वो भी कर सकते हो। इसके साथ में बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, उसमें से भी आप अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है या कुछ टॉपिक्स क्लीशे लग रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो वो चीजें आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा मतलब एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करना, किसी भी क्लासेस की टेस्ट सीरीज वगैरह उठाने की। और उसमें से इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है, सेक्शनल भी टेस्ट होते हैं जैसे इकोनॉमी का स्पेशल पेपर, तो जितने इकोनॉमी के टेस्ट है अगर वो टेस्ट हमने सॉल्व करे, उसके एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से देखे, तो प्रीलिम्स के लिए हमारा इकोनॉमी का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी जाएगी नहीं। जो भी कुछ पार्ट बच जाएगा वो करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था। 2026 के लिए अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो जैसे मैंने बोला है कि, बट थोड़ा सा फास्टन जितना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उतना करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है, लिमिटेड टाइम में आपको आपका ऑप्शनल कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि जैन जैन के बाद से आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में स्विच होना होता है, तो उसके बाद आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं है। तो अभी जितना ज्यादा आप आपका ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हो उतना दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। और कुछ जो टॉपिक्स है जो जिनका प्रीलिम से ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है या इंटरनल सिक्योरिटी या इथिक्स का पेपर हो, वो वाले सब्जेक्ट जो जीएस के पेपर जितना आप कंप्लीट कर सकते हो अभी बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप कोशिश करो। उसके बाद में फिर प्रीलिम्स के मोड में लग जाओ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ मेरा ऑप्शनल ठीक ठाक से प्रिपेयर्ड है, बाकी सारी चीजें मैंने देख ली है, देन
डेफिनेटली अच्छे से प्रीलिम्स देके आप कर सकोगे। डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल इज़ व्हाट आई वांट टू से। अ See, someone has asked about economics optional. ऑनेस्टली मुझे इस ऑप्शनल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है बट आप अगर कोई अगर फाउंडेशन बैच वगैरह से कर रहे हो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो बट जैसे किसी टॉपर ने कुछ बुक्स अगर सजेस्ट करी है तो रेफरेंस के लिए वो बुक्स भी आप रीड कर सकते हो। बट अगर आप खुद से एनालाइज एनालाइज करो कि जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो गए हो वो वाले फाउंडेशन बैच में, वो वाले टॉपिक्स और यूपीएससी के पीवाईक्यूज वो वाले टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे, आप खुद से देखना कि आर यू एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस राइट, आंसर दोज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नॉलेज और नोट्स व्हिच यू हैव मेड फ्रॉम द फाउंडेशन कोर्स। अगर आपको लग रहा है कि इतने जो भी कंटेंट उन्होंने दिया है उससे आप अगर अच्छे से लिख पा रहे हो, वो इनफ है अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो कोई इश्यू नहीं। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला कंटेंट इनफ नहीं है, तो डेफिनेटली जो भी कुछ किसी टॉपर ने कहा है बुक फॉलो करना चाहिए, तो उसको रेफर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस वाज माय सिक्स्थ अटेम्प्ट। सी समवन आस्क्ड अबाउट कि भाई मुझे 6 अटेम्प्ट लग गए तो कौन सी गलती थी? तो भाई जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि बिफोर इवन बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स देने से पहले आपका खुद का मेंस प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। मैंने इनिशियली तो मेरा ऐसा था कि प्रीलिम्स का ही प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं था जिसकी वजह और जो यूपीएससी की पढ़ तो मैं रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ी नहीं थी या ऐसे ही टाइम पास चल रहा था और एग्जाम दे दिया। प्रिपेयर किया था बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ यूपीएससी मैं खुद को मतलब उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाया था। मैंने अच्छे से पीवाईक्यूज वगैरह एनालाइज नहीं करे थे जिसकी वजह से मेरे इनिशियली प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुए। और इनिशियली प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए तो इसका क्या होता है कि यार अपना प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स का ही प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं कि और अच्छे से ज्यादा और पेपर सॉल्व करेंगे मतलब और ज्यादा पढ़ेंगे। और इस चीज में क्या होता है अपना ऑप्शनल वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता है। तो वो मेरे साथ हुआ। जैसे इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम मोड में ही मतलब एमसीक्यू सॉल्व करो, सीसैट के पेपर सॉल्व करो, यही करता रहा जिसकी वजह से मेंस का प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाया। और मेंस भले ही मेरा हर बार क्लियर हुआ बट वो मार्जिन जो था क्लियर होने का कट ऑफ से थोड़ा ही ऊपर था। इसकी वजह से इंटरव्यू में अगर अच्छा स्कोर भी आया तो भी फाइनल लिस्ट में आने के चांसेस कम ही रहते थे। तो वही चीज की आपको आपका ऑप्शनल अच्छा करना चाहिए। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जैसे आपने आपका सिलेबस गो थ्रू अच्छे से कर लिया हो, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रॉपर कॉपीज वगैरह उठा के अच्छे से देखना चाहिए। ये सारी चीजें मैं करने में कम पड़ गया इनिशियल अटेम्प्ट्स में जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो मेरी लर्निंग से जो मेरे एक्सपीरियंसेस से वो चीजें आप लोग मतलब अभी से आप ले लो और ये गलती आप मत करो। जितना अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हो उतना पहले ही करो और फिर अटेम्प्ट देना। टॉपर कॉपी को कैसे यूटिलाइज करें? तो टॉपर कॉपी को वही मैंने बोला कि जो भी टॉपर के कॉपी से वो हम लोग कैसे देखना चाहिए कि अ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जब है तो उसको आप खुद से पहले लिखने की कोशिश करो। आप जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो करने के बाद फिर टॉपर की कॉपी देखना कि उसने क्या लिखा है और मैंने क्या लिखा है। और कौन-सी चीज़ मतलब आपको खुद को पता थी पर आप लिख नहीं पाए या कुछ-कुछ मतलब पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आपने भी लिखा है और टॉपर ने भी लिखा है बट आपका लिखने का तरीका और उनका लिखने का तरीका वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कि मतलब खुद के आंसर को बेटर कैसे करें। कंटेंट मोर और लेस सेम रहेगा कई बार मतलब कई बार एकदम अचानक से हम लोग अपना कंटेंट बढ़ा भी नहीं सकते अगर प्रीलिम्स के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो। तो वो जो लिमिटेड टाइम है उसमें हमको हमारे अचानक से कंटेंट अगर बढ़ नहीं पा रहे तो बट जितना भी लिमिटेड कंटेंट है उसको और अच्छे तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टॉपर्स कॉपी कि उन्होंने कितने अच्छे से लिखा है।
प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सारे क्लासेस के टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे, किसी भी एक क्लास का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करना भी नहीं है तो मार्केट में टेस्ट सीरीज के मतलब अवेलेबल होते हैं टेस्ट, वो भी आप घर पे लाके सॉल्व कर सकते हो। एंड मेरे तरफ से वन मोर थिंग कि एक क्लास का टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की बजाय एटलीस्ट कम से कम 2 क्लासेस के टेस्ट आप लिखते जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मतलब एक एडॉप्ट हो जाते हैं उन उस क्लास के, मतलब जिस तरीके से वो लोग क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, तो कई बार हमारा तुक्के भी सही से लगने लगते हैं। तो इट इज बेटर कि हम लोग एटलीस्ट 2 डिफरेंट क्लासेस के टेस्ट पेपर सॉल्व करें। पीवाईक्यूज के बारे में मैंने बता दिया। स्टडी टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल जो है वो मेरा वैरी करता था डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब मेरा आई वाज वर्किंग, तो उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे खुद के मतलब टाइम को, एंड आई वाज अ मेडिकल ऑफिसर, तो मेरा जो था वो 24 आवर्स मतलब कंटिन्यूअसली वर्क पे रहते हैं हम लोग। जब भी कभी इमरजेंसी आती है तो वी हैव टू गो एंड सी द पेशेंट, तो उस अकॉर्डिंगली हमें अडॉप्ट करना था और उस अकॉर्डिंगली स्टडी का टाइम टेबल भी वैरी करता था। बट जब अगर प्रीलिम्स टू मेंस के बीच में जैसे कुछ टाइम के लिए मैंने लीव लेके जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो उस टाइम पे आई यूज टू प्रिपेयर मोर इन द मॉर्निंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा सुबह पढ़ता था। उसमें भी मतलब इनिशियली कुछ टाइम ऑप्शनल के लिए डिवाइड करना, ऑप्शनल के बाद में फिर अ, एक एक सेशन ऑप्शनल के लिए देने के बाद फिर 3 घंटे का आंसर राइटिंग के लिए, फिर उसके बाद में जीएस की पढ़ाई, फिर शाम को थोड़ा सा जो भी कुछ दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना, इस अकॉर्डिंगली मैं पढ़ता था। एज सच कोई फिक्स टाइम टेबल मेरा था नहीं, बट जितना टाइम डिवोट कर सकता था उतना करके उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब आउटपुट जितना ज्यादा उससे निकल आए उसके लिए मैं कोशिश करता था। लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम को बार बार रीड करें। सी लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम को हमको मतलब रीड करना ही है ज्यादा से ज्यादा बार, क्योंकि वो जो 2 बुक्स है वो खुद ही मतलब एक नोट्स के फॉर्म में है, इस तरीके से। तो उससे ज्यादा नोट्स बनाने के बजाय उन वो दोनों बुक्स को जितने अच्छे से हम लोग जितने बार रीड कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करो। ऐसा मत करना कि हाँ लक्ष्मीकांत हम लोग सेकंड टाइम रीड कर रहे हैं, थर्ड टाइम रीड, पहले हम लोग रिवीजन करते थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे और फिर एंड तक जाएंगे। अगर वैसा हम लोग करने लग गए तो इनिशियल टॉपिक्स में हम लोग ज्यादा एनर्जी से कर पाएंगे, और जैसे जैसे एंड के टॉपिक्स आएंगे हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएंगी, और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लो ऑन एनर्जी होने की वजह से हमारे मिस हो जाएंगे या उतने अच्छे से नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जब हम लोग रिवाइज करेंगे टॉपिक्स, तो उसको भी डिपेंडिंग ऑन द कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज किस टॉपिक से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनको मतलब देख के उस अकॉर्डिंगली हमारा अपने को रिवीजन प्लान बनाना है। मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ठीक है बाद में देख लेंगे, फंडामेंटल राइट्स हाँ इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कवर कर लेंगे, पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, या अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो वाले टॉपिक हम लोग कर लेंगे पहले, इमरजेंसी वाले टॉपिक पे कर लेंगे, फिर छोटी छोटी टॉपिक्स बाद में करेंगे। वैसे ही मतलब स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम में सारा मतलब 1857 से पहले वाली चीजें ठीक है उतनी ज्यादा नहीं पूछेंगे, कुछ रिवोल्ट्स वगैरह है वो वाली चीजें पूछते हैं। ज्यादा फोकस कहाँ पे रहता है कि भाई 1919 के बाद वाली चीजें वो हम हमें पहले कवर करना चाहिए, फिर उसके बाद में 1885 टू 1919 पढ़ना चाहिए। एंड में जो कुछ टॉपिक्स है जैसे एजुकेशन वाला टॉपिक, एजुकेशन डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद प्रेस डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए उन्होंने, तो उसके बारे में, तो ये वाली चीजें यूपीएससी ज्यादा पूछ रहे, तो ये वाली चीज इनको हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए या फोकस इन पे रहना चाहिए रेदर देन पूरा बुक, राइट। राइट, व्हाट इज राइट टाइम फॉर राइटिंग प्रैक्टिस में, अगर आपको लगा कि आपके पास किसी टॉपिक पे ऊपर इनफ कंटेंट है, वो दैट इज आल्सो मतलब सब्जेक्टिव कि एक टॉपिक पढ़ के ही आप मतलब आंसर राइटिंग लिखने जाओगे तो आपके आंसर में ना वो डेप्थ नहीं आएंगी। तो प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने के बाद एक थोड़ा सा टाइम जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डे वन से आंसर राइटिंग स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद का कंटेंट डेवलप करो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास ये वाले टॉपिक के लिए
एक इनफ कंटेंट है, शायद मैं लिख सकता हूँ, तो फिर लिखना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टेक्स के बारे में मैंने बोल दिया। इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सी मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं यूपीएससी के। तीनों इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट थे, कोई ऐसा सिमिलर नहीं था। पहला इंटरव्यू जो जब था दैट टाइम मतलब आई वाज़न्ट दैट मच कॉन्फिडेंट। कुछ क्वेश्चंस में मैं फंबल कर गया, कुछ क्वेश्चंस में मतलब टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आंसर नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से आई कुडन्ट स्कोर मच। फिर जब सेकंड इंटरव्यू था, उस टाइम पे मैंने मतलब खुद को जितना अच्छे से इम्प्रूव कर सकता था, मैंने इम्प्रूव किया। सेम बोर्ड था बट लगभग 40 मार्क्स का डिफरेंस था मेरे पहले और दूसरे इंटरव्यू में, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मैं ज़्यादा बेटर एबल टू आई वाज़ बेटर एबल टू कम्युनिकेट माय सेल्फ। जो भी कुछ मेरी चीज़ें थी, मैं अच्छे से बता पा रहा था, जिसकी वजह से अ, अच्छा स्कोर आया। और फिर ये वाले इन दिस इंटरव्यू आई कुड स्कोर 192, तो एक अच्छा स्कोर। तो ये भी जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि इंटरव्यू में कौन सी चीज ज्यादा मायने रखती है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, द वे यू आर एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स विच यू वांट टू कम्युनिकेट। उसके बाद में जो आपका नॉलेज है, आपका कंटेंट है, आप कितने प्रिसाइज हो आपकी बातों में, आपके आंसर्स में, आप कितने क्लियर हो जो भी आप आंसर बता पा रहे हो उसमें, और आप कितने जेन्युइन हो और कितने रियल हो। जैसे आप हो वैसे प्रेजेंट कीजिए उनके सामने, डेफिनेटली दैट इज रिवॉर्डिंग। इनिशियली मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैं नहीं कर पाया था, इसलिए आई स्कोर्ड बैडली, बट इन माय सेकंड एंड थर्ड इंटरव्यू डेफिनेटली आई इम्प्रूव्ड अपॉन माई सेल्फ। जितनी चीजें मैं डेवलप कर पाता था खुद के बारे में, मैंने किया, प्रिपेयर किया, एंड आई स्कोर डिसेंट दिस टाइम। क्वेश्चन है कि एसए के लिए कंटेंट कहाँ से लाए। तो एसए के लिए जो कंटेंट है, वो बहुत सारी चीजें मतलब एग्जांपल्स जो है हमारे न्यूज़पेपर से, ये जो भी चीजें हम डिफरेंट डिफरेंट अपना जीएस के लिए हम लोग रीड करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग जब कंपाइल करेंगे, तो एसए के लिए हमारा कंटेंट डेफिनेटली उसी से आ जाएगा। somebody has asked कि दिन में स्टडी करना चाहिए या रात में। तो दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि जब भी आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो, कोई जैसे कि मैं दिन में या मॉर्निंग में ज्यादा अच्छे से पढ़ पा सकता था रादर देन एट नाइट, बट कुछ लोगों को ऐसे रहता है कि वो दिन की बजाय दे आर नाइट आउल्स, की रात में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। तो दैट इज सब्जेक्टिव। आपको जब ज्यादा अच्छे से आप प्रोडक्टिव हो, ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, ऐसा आपको लगता है, तो यू शुड गो विथ इट। एनसीईआरटीज पढ़ने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटीज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कोई बात नहीं, आप सीधा जैसा है कि आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, उस अकॉर्डिंगली आप मतलब पूरा पढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, उसके बाद में जैसे आपको मतलब सिलेबस की डेप्थ समझ में आएंगी, तो आप एनसीईआरटीज को टॉपिक के हिसाब से, मतलब कौन से टॉपिक पे यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, क्या है, उस अकॉर्डिंगली फिर वो वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, उनको पढ़ना है, और उनके ही नोट्स आपको बनाने हैं। रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑन माय एज, आई एम करेंटली 30। सी एनी वन कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपका प्रीवियस बैकग्राउंड, आपके कितने परसेंटेज कौन से क्लास में थे, क्या है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, प्रोवाइडेड कि आप अभी एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हो। आप अभी अपने मतलब जो भी आपने डिसाइड किया है, उसके लिए आप ऑनेस्टली एफर्ट्स लोगे। एक जितना ज्यादा हार्डवर्क आप कर सकते हो, जितना अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हो, खुद के साथ मतलब खुद के तैयारी के साथ आप जस्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका पिछला सब कुछ भूल जाना और प्रिपरेशन के लिए लग जाना।
हाउ टू बिकम स्ट्रांग इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है ज्योग्राफी का वो एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी जो है वो मोर और लेस सफिशिएंट है काफी सारे प्रिपरेशन के लिए। आपको अगर वो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हो तो 6th से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद में आप 9, 10th, 11th, 12th पढ़ सकते हो। और उसके साथ अगर आपको मतलब ये पढ़ने के बाद अगर कुछ चीजें डिफिकल्टी जा रही है समझने में, तो आप मतलब यूट्यूब से वगैरह कुछ वीडियोस वगैरह उसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के रिलेटेड आप देख सकते हो, उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। फिजिकल में और फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स लग रहे तो जीसी लियोंग इज आल्सो गुड बुक टू रेफर। तो ये दो चीजें और ये जो सोर्सेस है दैट विल मोर और लेस सफाइस फॉर द ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन नहीं, जो किसी ने पूछा है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट में फोटो बराबर से अपलोड नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम उतना क्रिएट नहीं होगा। यूपीएससी विल गिव आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स है या थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस है वो करेक्ट करने के लिए। यूपीएससी आपको चांसेस देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। किसी ने पूछा है कि डेफिनेटली मैं या कोई और जो भी लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जिसी भी तरीके से हम लोग मतलब स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए पॉसिबल है उस तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मैं भी मेरे इन माय कैपेसिटी आई विल ट्राई टू रीच आउट टू द मोर कैंडिडेट्स की और मेरे तरफ से गाइड करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। तो द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम नॉट सो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, जिनके पास मतलब पैसे नहीं है प्रिपरेशन वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी काफी सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे कैंडिडेट्स भी अपने अपने चैनल से, बीट यूट्यूब चैनल, बीट टेलीग्राम चैनल, काफी सारा मटेरियल वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप बस वो चीजें अच्छे से देख लेना, प्रिपेयर करना, कोई इश्यू नहीं। सारे सारे कैंडिडेट्स किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, आपको सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। I guess I have answered more or less all the queries asked by you guys. Uh, अगर किसी और को भी क्वेरीज कुछ पूछनी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला है कि लिमिटेड रिसोर्सेस रखो। रिसोर्सेस लिमिटेड रख के जितना ज्यादा बार उन चीजों को आप रिवाइज कर सकते हो उनको रिवाइज करो। मैक्सिमम टेस्ट सॉल्व करो। कुछ क्या गलत जा रहा है, कौन से मतलब सब्जेक्ट्स जो स्पेसिफिकली आप मतलब लो स्कोर कर रहे हो, जो भी अपने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स है उसमें, उनको एनालाइज करो, उनको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और यूपीएससी के पीवाई क्यूज को एनालाइज करो। जब भी आप पीवाई क्यूज एनालाइज करोगे आपको ध्यान में आएगा कि कौन सी टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, उन पे फोकस करो। जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है उन पे फोकस करो। मैक्सिमम पेपर सॉल्व करो, कोशिश करो, हो जाएगा। कोई मतलब डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। I'll provide my Telegram ID to and Instagram ID to the channel, and they will pin it in the comment section. By that, you can connect with me. Uh, एक टेस्ट सीरीज के बारे में पूछा है बट ऑनेस्टली आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, सो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू कमेंट ऑन इट। सॉरी। So I guess I have answered most of the queries.
ऑफ यू गाइस एंड जितना मेरी तरफ से भी मतलब आपके लिए बताने वाली चीजें थी वो सारी भी मैंने टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी बताने की कोशिश करी है। तो जब भी कभी मतलब चांस मिलेगा मैं आपके साथ मतलब कोऑर्डिनेट करूंगा, कांटेक्ट करूंगा और आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू यूपीएससी टाइम इंडिया कि उन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड मी दिस प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद यू गाइस and give me this opportunity to answer your queries to the best of my knowledge and abilities. Thank you so much. मिलते हैं कभी. All the best to you all and thank you. Okay, जाते जाते एक और कमेंट दिख गया मुझे. So that somebody has current affairs FOMO. तो करंट अफेयर्स का मतलब डरने की कोई बात नहीं है. कोई भी एक न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यूअसली रखो और कोई भी एक मंथली मैगजीन किसी भी रिपीटेड क्लास का वो आप फॉलो कीजिए, कवर हो जाएगा. इवन इफ अगर वो सारी चीजें नहीं हुई तो कीप इन माइंड अप्रोक्सीमेटली 65 टू 70 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक पार्ट से होते हैं और 35 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं. तो आप आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना. करंट पढ़ो, इग्नोर मत करो, बट थोड़ा बहुत अगर वीक भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छे से स्टैटिक अगर आपका प्रिपेयर हो जाएगा देन यू विल सेल थ्रू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. डोंट वरी. Regarding the plan from August to next prelim, I have mentioned earlier as well कि अभी मेंस के लिए प्रिपेयर करो जितना अच्छे से हो सके टिल दिसंबर. प्रिपेयर योर ऑप्शनल, प्रिपेयर सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स जो भी प्रीलिम्स से मतलब रिलेटेड ज्यादा नहीं है, जैसे सोसाइटी है, सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वो वाला कंप्लीट कर लो और फिर फ्रॉम जैन आप मतलब कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में चले जाओ. टेस्ट सीरीज देना वगैरह वो सब करना, सीसैट का भी अच्छे से मतलब टेस्ट वगैरह देना, प्रिपेयर करना, वो सारा फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट कर देना है. डेली 50 क्वेश्चंस वगैरह भी अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो दैट इज गुड. बट वो फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट कर देना. अभी से प्रीलिम्स के क्वेश्चन मतलब ज्यादा करने के बजाय मेंस पे फोकस करो और इफ पॉसिबल मेंस के आंसर राइटिंग कर देना. तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस अभी से करने की कोई जरूरत नहीं है. Regarding my service choice, I have given IAS as first preference, then Indian Police Service, then Indian Foreign Service, then Revenue Services, Customs and IT, then Indian Audit and Account Service, and after that, I have given this Indian Information Service, which I have been allocated as per my result and rank. Prelims के लिए क्या करना है? I have mentioned earlier, so I guess there is no need to repeat again. ओके, सो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस भी एड्रेस हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली. तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन अगेन. once again it's very good, it's nice interacting with you guys and thank you for this platform, uh, UPSC Time India, to provide me to giving me this opportunity to interact with you guys. And all the best to all of you. Definitely you will get very good result in future. All the best. Thank you.